Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Shafeen here with Study Solution. Our today's book is Pakistan Studies for Class 9 Federal Board, and our today's chapter is chapter number 1, The Ideological Basis of Pakistan. हमारे आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले बेहतर है कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर पर एक नज़र डालें. Ideology is a plan or program of common life. Common religion, common race, language, common residential area, common political purposes, and common customs are the sources of ideology. The ideology of Pakistan is the name of practicing the principles of Islam. Ideology of Pakistan based on Islamic values like beliefs, justice, promotion of democracy, fraternity, and duties of the citizens. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह. Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh was born on 25th December 1876. He joined politics in 1906 and joined All India Muslim League in 1913. Earlier, he tried to unite Hindus and Muslims, but after failing, he was a strong supporter of partition. He reorganized All India Muslim League, and his views on the ideology of Pakistan were very clear. Students, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. आपने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की और उसके बाद आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए. 1906 में आपने सियासत को ज्वाइन किया और 1913 में आप मुस्लिम लीग के मेंबर बने. 1916 में आपने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लखनऊ पैक्ट साइन करवाया, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद आपने ये रियलाइज़ किया कि हिंदू और कांग्रेस मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए होने वाले किसी भी काम की फेवर में नहीं हैं. चुनांचे आपने अपनी तवज्जो मुस्लिम लीग की रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ लगाई और अब मुसलमानों को एक अलग मुस्लिम स्टेट के हसूल के लिए जद्दोजहद करने की तरफ राग़िब किया. अब हम नज़र डालते हैं कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ख़यालात पर जो उनके आइडियोलॉजी पाकिस्तान के बारे में हैं. अल्लामा इकबाल्स ड्रीम कन्वर्टेड इनटू रियलिटी. According to Qaid-e-Azam, the territories having Muslim majority like Punjab, Bengal, Assam, Sindh, NWFP, KPK and Balochistan should be put together to form Pakistan, where people may lead their lives in accordance with Islam. The minorities should enjoy equal rights too. यानी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ख़याल में कि वो तमाम इलाके जहाँ मुस्लिम ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, जिनमें पंजाब, बंगाल, असम, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान के इलाके थे, इन सब को मिलाकर एक ऐसी मुस्लिम स्टेट बनाई जाए जहाँ मुसलमान अपनी मजहबी आज़ादी के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें और वहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी मुकम्मल आज़ादी हासिल हो. Provision of basis to the millat. Qaid-e-Azam wanted to establish the system of the country on the basis of Quran. In the session of All India Muslim League at Karachi in 1943, he said, "What relations knit the Muslims into one whole, which is the formidable rock on which the Muslim edifice has been erected, which is the sheet anchor providing basis to the Muslims millat, the relationship, the sheet anchor and the rock is Holy Quran." यानी कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि वो क्या चीज़ है, वो कौन सा रिश्ता है, वो कौन सी नाकाबिल तस्खीर चट्टान है और वो कौन सा बेसिक पॉइंट है जिसकी वजह से मुसलमान एक वजूद और एक जिस्म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. ये सब सिर्फ और सिर्फ कुरान ही की वजह से है. आगे चल के कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. While addressing the students in March 1944, Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh said, "Islam is our guide and it is the complete code of life." यानी इस्लाम हमारा रहनुमा है और ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. एक और जगह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोटिव ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान क्या है. Addressing at Aligarh, Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh said, "What was the motive of demand for Pakistan? And what was the reason of separate state for the Muslims?
Why was this need to divide India felt? It is the fundamental demand of Islam. यानी वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुतालबा किया गया, और वो क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि सब कॉन्टिनेंट को तकसीम किया जाए। ये दरअसल इस्लाम ही का बुनियादी नुक्ता था जिसकी वजह से इस ज़रूरत को महसूस किया गया। Quaid-e-Azam's important speeches that defining the ideology of Pakistan. While addressing at Peshawar in 1946, Quaid-e-Azam said, "We don't demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principles." Quaid-e-Azam ने फरमाया कि हम पाकिस्तान का मुतालबा सिर्फ एक खित्ता ज़मीन के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हमें एक ऐसी लेबॉर्ट्री चाहिए, हमें एक ऐसी तजर्बागाह चाहिए जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। एक और मौके पे कायद-ए-आज़म फरमाते हैं, on 21st March 1948, addressing people of Dhaka, "What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pathan and so on. We are nothing but Pakistani. Now it is our duty to act like Pakistani." यानी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से और सूबाई तशख़्ख़ुस से हट के सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपनी पहचान बनानी चाहिए और पाकिस्तानी ही की हैसियत से अपने आप को मनवाना चाहिए। While inaugurating the State Bank of Pakistan in 1948, the economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. It has failed to do justice between man and man. We must present to the world an economic system based on the true Islamic concepts of equality of mankind and social justice. यहाँ पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को प्रमोट करते हुए एक ऐसे इकनॉमिक और मुआशी सिस्टम की तश्कील के लिए तजवीज़ पेश करते हैं कि जिसकी बुनियाद इस्लामी बराबरी और माशरती इंसाफ के असूलों पर हो, क्योंकि उनका ख्याल था कि मगरिब का जो इकनॉमिक सिस्टम है वो इंसानों में इंसाफ मुहैया करने में बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारे आज के टॉपिक को समझने में आपको बड़ी आसानी हुई होगी और कायद-ए-आज़म के व्यूज़ आइडियोलॉजी पाकिस्तान के बारे में बड़े क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, like and share my videos, and proud to be a Pakistani. Stay safe and stay home. Thank you.